ऑल राइट, हम अपना जो वेबिनार है स्टार्ट करते हैं। जो आए हैं यहाँ पे सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो वेबिनार है ये हम लोग इंग्लिश और हिंदी में हम लोग इसमें इसका जो कॉन्वर्जेशन होगा इंग्लिश और हिंदी में होगा। बट अगर हम लोग को लाइक तमिल भी आता है तो अगर हमारे ऑडियंस में किसी कोई है जिनको अपना सवाल लाइक तमिल में पूछना है वो भी आप पूछ सकते हैं। So, welcome to everybody who has joined this webinar. The conversation in the webinar will happen in English and in Hindi. We also have the capability to speak in like Tamil. So, if anybody has a question in like Tamil, they can also ask us the questions like in Tamil. The idea behind this our webinar is to address all the changes that have happened in the Envision app to people from the Indian subcontinent. So that is what we will be doing. And I will interchange between English and like Hindi because I can see that we have audience from both English speaking, both Hindi speaking and from like non-Hindi speaking areas. So I will alternate between these two. But a big chunk of this webinar will be a Q&A. So you are also welcome to ask us like all the of a question that you have. So the starting of 15 minutes of the webinar, I will explain a bit about some of the changes that Envision has made and what is the rationale behind those changes. And after that, 15 minutes, we'll open up the floor for any of the questions that you might have. Before that, we'll also want to give you a bit more of insight into what is the roadmap and the future of Envision like looks like, and all the updates and improvements that we have in the pipeline. तो ये जो वेबिनार है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। मैं स्टार्टिंग के कुछ 15 मिनट ले लूंगा ताकि मैं आप लोग को समझा सकूं कि एनविजन में जो भी हाल ही में जो लाइक चेंजेस हुए हैं उसके पीछे रीजंस क्या हैं, उसके जो कारण क्या हैं, और उसके बाद में आप लोग को थोड़ा एनविजन के आगे का जो रोड मैप है, आगे का हमारा जो अपडेट्स है उसमें हम लोग ने क्या लाइक प्लान किया है, मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। और उसके बाद हम लोग ये जो वेबिनार है इसको ओपन करेंगे। तो आप में से अगर किसी के पास भी कुछ सवाल हैं तो वो आप डायरेक्टली हमारे टीम से आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसके आगे जाने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैं कार्तिक महादेवन हूँ। मैं एनविजन का को फाउंडर और एक सीईओ और सीईओ हूँ। और मेरे साथ हैं कार्तिक कन्नन और क्षितिज अग्रवाल। कार्तिक कन्नन एनविजन के को फाउंडर और चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं, और क्षितिज अग्रवाल हमारे सीनियर एंड्रॉयड इंजीनियर हैं जो एंड्रॉयड ऐप जो एनविजन है उसमें उसका मेनली वो लोग नेतृत्व करते हैं। So my name is Karthik Mahadevan. I'm the co-founder and a CEO of Envision, and along with me is Karthik Kannan, who's also a co-founder and the chief technical officer at Envision. And along with us is Ashitij Agarwal, who is the senior Android engineer at Envision, and he leads all the development of the Envision app on the Android side. So to start with, I want to explain what was the rationale behind the Envision app becoming free. Like what was the thought process like? But to explain that, I want to go to the very beginning of like Envision. When we started out Envision, like one thing that was clear to us that we want to make an accessible and a sustainable app. Like we wanted to make an app that can be accessed by as many people as possible, but at the same time it needs to have a business model that can actually sustain its development and its growth, because we saw that in the market there were a bunch of apps that were just not sustainable or they were not accessible, and we wanted to be both. So as we started offering the app, it got a lot of like love, and it got a lot of very active feedback from the community, which helped us keep on improving the app. We kept on adding new features. We kept on adding a new stuff that the community has been asking for us. So there was constant development that has been happening on the Envision app ever since we launched 5 years ago.
And all of you have been a witness to the change and the improvements and the developments that the Envision app has been able to bring. And we were excited that this app is now becoming an essential a part of like your life. But as the app started being used more and more, one thing that also started happening on our end was that our server costs, which are related to the usage of the online functionalities of the app, they kept on increasing as well. We did our best to keep it as sustainable as possible, but we also had to make it accessible. So we did decrease the price of the app. We held a summer sales to make sure that like a lot more people can actually have access to the app. We did a lot of that to make sure that we can have a big enough amount of people on the app, so that the like the amount that we make from subscription can actually offset the server cost that we were making. But we started to reach a point where the server cost kept increasing a lot faster than what the subscriptions could offset. And a big chunk of the problem in this whole instance was also the like piracy and the cracking of the app, which became for us like kind of a recurring issue. Because when somebody is having a pirated or a cracked version of the app, they're also like using the same online functionalities, and like we have spent months attempting to stop it. But because of the nature of Android as a platform, because of the open source nature of it, there is only a small team like Envision could do to stop the people who are cracking and like pirating the app. So this led us to a point where we had one of two choices. Choice number like one would have been we increase the price of the app. We increase it to be a much more than like what it was, and spend a lot of our energies in fighting the people who are cracking and like pirating the app. That would have been the choice that we could have like made in order to make this a sustainable business for us. The other option was to like to make the app free and to put our efforts, our engineering efforts, into ensuring that all the features that we have can perform optimally offline without depending on our servers and without incurring like costs on our end. So we chose to go with option 2, because that is more aligned with our long-term objectives, where once everything can be offline and free, then like a lot more people can actually have access to it, while we can still build a sustainable business model around it through like other means. So that is the path that we chose, and I will explain a bit more about what that means in terms of the pathway in ahead of us. तो अभी मैं यही बात मैं हिंदी में करता हूँ. I'll just repeat the same thing in हिंदी. जब हम लोग ने एनविजन ऐप को स्टार्ट किया था, ये कुछ 5 साल पहले की बात है. तो हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि हम इस ऐप को जितने लोग तक हम लोग पहुंचा सके, हम लोग उतने लोग तक इस ऐप को पहुंचाएंगे. तो जितना भी इसको एक्सेसिबल हम बना सकें, उतना एक्सेसिबल होना चाहिए ये ऐप. बट एक्सेसिबल के साथ ये सस्टेनेबल भी होना चाहिए. मतलब हमारा जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए इस ऐप से हम लोग को उतना अलग रेवेन्यू भी आना चाहिए, जिससे हम लोग ऐप में कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट्स Sitesh, is it just me or okay? Yeah, I think we lost you in between, Mahadevan. Can you maybe back up a bit? Hello. Yeah. Can you hear me now? Yeah, we can hear you now. Sorry, I think my internet was unstable for a while, but like I'm back. तो मैं
मैं बोल रहा था कि तो अगर आप लोग हमारे साथ कुछ सालों से अगर आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ने कैसे अपने एफर्ट से ऐप में बहुत सारे डेवलपमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स लाए। आपके जो फीडबैक को हमने अलग लिया और वो फीडबैक को हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया ऐप के फीचर्स में, ताकि ये ऐप आप लोग के लिए ज़्यादा यूजफुल होता जाए। बट बट जैसे जैसे अलग ये होता गया, एक पॉइंट ऐसा आया कि हमारा जो सर्वर का जो कॉस्ट होते हैं, जो अब मेनली हमारे ऑनलाइन फंक्शनैलिटीज पे डिपेंड करता है, वो सर्वर कॉस्ट इंक्रीज होते गए और वो इस लेवल तक इंक्रीज हो गए कि हमारे जो सब्सक्रिप्शन से जो पैसे आ रहे हैं उससे हम लोग अभी उस सर्वर कॉस्ट को हम लोग सस्टेन अलग हम नहीं कर पा रहे हैं। और वो जो हमारा ऐप का जो बिजनेस मॉडल है उस तरीके से वो सस्टेनेबल नहीं है। और इसमें एक बहुत ही जो जो लाइक मुख्य भूमिका है वो है जो ऐप को जो क्रैक करते हैं या जो हैक करके इस ऐप को यूज करते हैं, उनका इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि वो जब ऐसा इसको यूज करते हैं, हमारे ऑनलाइन फंक्शनैलिटीज को जब यूज करते हैं, तो उसके जो सर्वर कॉस्ट हैं वो सब हमारे ऊपर आते हैं। और हम लोग ने कई महीने साल इसमें लगाए कि जो क्रैकिंग है, जो पायरेसी है, उसको उसको रोका जाए। हम लोग ने बहुत सारे अलग 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 कैंपेन लगाए, बहुत सारे अलग अलग जो बहुत अलग 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 सिक्योरिटीज और फायरवॉल्स लगाए, ताकि लोग अपने अकाउंट ना शेयर करें, लोग अपने फ़ोन नंबर से उसको ऑथेंटिकेट करें। बट जो एंड्रॉयड का जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो ओपन अलग सोर्स है, तो आप कितना भी कोशिश अलग कर ले, वो एक तरह से उसको पूरा 100% सिक्योर बनाना काफ़ी काफ़ी अलग मुश्किल काम है, स्पेशली हमारे जैसे छोटे अलग टीम के लिए। तो जब हम इस स्थिति पे आ गए, हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे। ऑप्शन एक कि हम ऐप का जो कॉस्ट है उसको हम लोग इंक्रीज करें, जो सब्सक्रिप्शन आप लोग देते हैं उसका जो प्राइस है उसको हम लोग इंक्रीज करें, और हम अपना पूरा पूरा एनर्जी जो लोग ऐप को हैक कर रहे हैं और जिसको पायरेट कर रहे हैं, उन लोग को स्टॉप करने में हम लोग अपना सारा एनर्जी उसमें लगाएं। ये हमारे पास एक ऑप्शन था। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन था वो है कि हम लोग ऐप को फ्री कर दें और हम लोग अपना इंजीनियरिंग एफर्ट्स इस बात में लगाएं कि जो जो ऐप में जो फंक्शनैलिटीज हैं उसको हम लोग ऑफलाइन करके उसका एक्यूरेसी और उसका जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करें। तो हम लोग ने इस टाइम पे ऑप्शन 2 चूज किया है, क्योंकि वो हमारे कंपनी के जो लॉन्ग टर्म जो मिशन है उससे अलाइन होता है। क्योंकि हम लोग कितना भी हम लोग जो पायरेसी से टेक फाइट मार ले, वो बहुत ही एक मुश्किल अलग फाइट है। और ऐप का जो प्राइस है उसको वापस इंक्रीज करना, वो हमारा जो पहला जो उद्देश्य था कि ये ऐप जितने लोग के लिए एक्सेसिबल हो उतना एक्सेसिबल होना चाहिए, उस उद्देश्य के अगेंस्ट था। तो इसलिए हम लोग ने ऐसा डिसीजन लिया है कि हम लोग ऐप को उसको फ्री करेंगे और जितने भी फीचर्स हैं उसको हम लोग ऑफलाइन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बट अब बिना एक्यूरेसी और उसके जो परफॉर्मेंस है उसमें उसमें कॉम्प्रोमाइज बिना। और ये बात हम लोग को पूरी तरह से पता है कि अभी जो भी ऑफलाइन फीचर्स हम लोग लेके आए हैं उसका एक्यूरेसी कुछ इंस्टेंसेस में ऑनलाइन जितना अच्छा नहीं है। और ये स्पेशली हिंदी या ऐसे लैंग्वेजेस में ये एक्यूरेसी में थोड़ा फर्क है, ये बात हम लोग को पता है। बट हम लोग अपना पूरा इंजीनियरिंग एफर्ट्स इस बात में लगाएंगे कि वो एक्यूरेसी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो वो हमारा अभी उद्देश्य है। एंड आई थिंक शॉर्ट टर्म में उससे तकलीफ होगी, उससे हमारे अलग यूजर्स को तकलीफ होगी और हम लोग को भी तकलीफ होगी। बट हमारा उद्देश्य और होप है कि लॉन्ग टर्म में हम लोग इसका एक्यूरेसी इम्प्रूव अलग कर सकें, ताकि जब वो एक्यूरेसी इम्प्रूव हो तब हम सबके लिए ये ऐप सस्टेनेबल भी हो, एक्सेसिबल भी हो।
So just to like repeat in English, as of now, the goal is for us to make sure that this app is offline and free, so that we can focus on improving the accuracy of the offline like features to a point where they are equal to or better than the online features. So that's where the focus is going to be, and that is like what is aligned with the long-term vision of us as a company as well. So in order to improve accuracy and in order to sort of improve like performance of the offline like functions, one thing that we do need is more data, and that's the reason for the app being free, so that the more people can use it, the more data that Envision has in order to improve our AI. So that is a key component to it, and that's why the more you like use it, you will actually be able to see the app improve. So that is a key component that Envision is going to like focus on in the coming months. तो हम लोग का भी जो उद्देश्य है, जैसे मैंने बोला कि इसको ऑफलाइन और उसको लाइक फ्री करना है, उसमें एक और है कि जितने लोग इस ऐप को यूज करेंगे, उतना ज्यादा डेटा एनविजन के पास होगा अपना एआई को इम्प्रूव करने के लिए। और हमारा भी उसी में फोकस है कि हम लोग जो हमारे पास जो जो यूसेज का डेटा है, उसको रख के हम लोग अपना ऑफलाइन एआई को कैसे इम्प्रूव अलग कर सकते हैं। तो वो थोड़ा उसमें वक्त लगेगा, बट हम आपको ये बात निश्चित रूप से अब बताना चाहते हैं कि जो जो ऑफलाइन एआई का एक्यूरेसी है, वो यकीनन इंक्रीज होगा। तो उसी में हमारा लाइक फोकस है, और ये जो फोकस है ये हमारे जो लॉन्ग टर्म उद्देश्य से काफी अलाइन होता है। तो इसके बाद मैं बस थोड़ा आगे जो हमारा अलग रोड मैप है, मैं उसकी बात करूंगा। उसके बाद मैं ये फ्लोर ओपन करूंगा आप सबके सवालों के लिए। तो हम लोग अभी आगे जाके जो मैंने आपको एक बात ऑलरेडी अब बोली कि एक्यूरेसी का जो इशू है, उसमें हमारा बहुत ही फोकस होगा। तो एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करें, हमारे पास इंटरनली एक एआई का एक प्लान है जिससे हम लोग एक्यूरेसी इंक्रीज कर रहे हैं। ये थोड़ा अगर मैं इसको अगर मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म में समझाऊं, तो एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए हम लोग इमेज ऑप्टिमाइजेशन में एक हम काम करते हैं, ताकि जो इमेजेस OCR होती हैं, वो इमेजेस ही काफ़ी अच्छी इमेजेस हो। तो एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हमारा बहुत अच्छा रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है। और इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो OCR होता है, जो AI का जो कंपोनेंट होता है, उसका जो डेटाबेस है, हम लोग उसी को इम्प्रूव करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा हमारे पास डेटाबेस होगा, उतना अच्छा हमारा AI का रिकग्निशन होगा। तो लाइक ये दो काम एक साथ हो रहे हैं, और इन दो काम के लाइक परिणाम से आपको हमारा जो एक्यूरेसी है, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। आने कुछ महीनों में आपको ये इम्प्रूवमेंट दिखने लगेंगे। दूसरी जो बात है वो है मल्टीपल लैंग्वेजेस का जो सिलेक्शन का वो है, जो लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस के डॉक्यूमेंट्स जो पढ़ते हैं, उसमें बहुत लोग को दिक्कतें आ रही हैं, और ये भी हमको पता है। बट ये दिक्कतें काफ़ी सेलेक्टेड लोगों को ही होंगी, जो बहुत ही डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस रीड करना चाहते हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश का डॉक्यूमेंट अगर आप रीड कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कतें आपको अभी हमारा जो AI है उसमें डिटेक्ट नहीं होंगी। अगर जो रीडिंग लैंग्वेज अगर आपने हिंदी रखा है, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ेगा। बट अगर आपका कुछ और लैंग्वेज है, जैसे विद तमिल, इंग्लिश और हिंदी, अगर ये तीनों अगर एक डॉक्यूमेंट में है, उन इंस्टेंसेस में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। बट अभी भी उसका भी सोल्यूशन है। अगर आप तमिल अपना रीडिंग लैंग्वेज रखते हैं, तो वो सारे लैंग्वेजेस को रीड करता है अभी भी, बट वो सिर्फ स्कैन टेक्स्ट में करेगा। ये एक लिमिटेशन है। बट आगे जाके इस लिमिटेशन को भी हम निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि एक AI मॉडल हो जो सारे लैंग्वेजेस को रीड करे। ये थोड़ा टेक्निकली कॉम्प्लेक्स जॉब है कि एक ही जो AI सारे लैंग्वेजेस को एक साथ रीड करे, वो भी ऑफलाइन। बट हमारे पास इस टेक्निकल चैलेंज को सॉल्व करने का एक
एक लाइक पाथवे है जिसमें हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे। उसके बाद जो फीचर्स हैं, जैसे जो कॉलम डिटेक्शन हमारे रोड मैप में है, जो भी ऑफलाइन होगा। जो पासवर्ड जो PDF जो है उसमें भी अलग हम काम कर रहे हैं। तो आने वाले अपडेट में आपको दिखेगा कि आप जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF है उसको भी आप रीड कर सकते हैं। जो लाइक बैकग्राउंड प्ले का बहुत अलग लोगों से रिक्वेस्ट था कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं उसका जो रीडिंग है वो पूरा लाइक बैकग्राउंड में हो। उसमें भी हमारे यहाँ पे काम चल रहा है, तो ये भी एक फीचर आपको आने वाले कुछ महीनों में दिखेगा। और जो बुक मार्किंग का जो फीचर है उसमें भी आपको आने वाले अपडेट्स में इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे। तो हमारे अलग रोड मैप्स में भी जो ये आपकी जो रिक्वेस्ट हैं अभी अलग ये हैं। बट मैं आपको ये बात का आश्वासन अलग देना चाहता हूँ कि एनविजन ऐप में कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट्स होते रहेंगे। हम इस ऐप के लिए हमारे पास आगे बहुत एक्साइटिंग प्लान्स हैं। अभी शॉर्ट टर्म में थोड़े डिफिकल्टीज हैं और इस बात को हम जानते हैं और इसको एड्रेस कर रहे हैं। बट हमारा बट हम लोग को इस बात का अलग पूरा अलग यकीन है कि लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐप बन के निकलेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ये बात को मैं बस एक बार इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं ओपन करूंगा। So just to give you a heads up about what are the features we have in the roadmap of the Envision app. The first focus, like I mentioned, would be on improving the accuracy of all the features. To improve accuracy, there are two approaches that we're taking. Like first approach is optimizing the image itself that is sent for OCR or like to the AI, so we can improve the quality of the image itself, like by doing some optimization on it. And the second aspect is to improve the AI itself, which is doing the recognition. And to improve the AI, we need a better like database of images that can be used to train the AI. So we already have a plan on how to like do that, and by a combination of these two techniques, we are very confident that we can improve the accuracy of our like recognition in the short term. The other issue that people are like having is with language selection, where you have to pick the reading like language that you want to read. And this is a particularly an issue for people who do like to read text in multiple languages. And this is especially affecting people who are reading languages apart from Hindi and English. And this is something that we understand. And I think this is a bit more complicated as a technical issue to have like a single AI like function that can do recognition in multiple like languages offline. But there is a plan and there is a pathway that we have on how to like tackle it. And I think over the next 6 months, if we have enough R&D effort that goes behind it, we will be able to offer a solution that will be able to do the multiple language selection as you sort of like used to do earlier. Apart from that, the other improvements that are planned as of now is on on stuff like column detection. We will be also bringing the column detection offline. We will start supporting the password to protected PDF as well. So if you have a PDF that is protected by password, you should be able to start reading that on the Envision app as well. We will introduce the background play option. So when you have scanned a document and you want to read the contents of the documents in the background, you can also do that. And we're bringing some improvements to the bookmarking function within the like a reader of the app. So that's in a nutshell everything that's in like roadmap. But Abhi, I would like to open the floor to the questions from the people. Our idea is to be as honest and as upfront with you as possible. So there is no restriction on the kind of the questions that you can ask us, but the only request we have is that you do it in a civil way. So if so that is a request that everybody keeps conversation a civil like conversation. If
anybody is being uncivil, we will have to sort of or like block them from the conversation. We are open to all the feedback, we're open to all the criticism, and we're open to all the questions, but we only request you to do it in a civil way. तो अभी मैं ये फ्लोर को ओपन करता हूँ आपके सवालों के लिए। आप कुछ भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारी निंदा अगर आपको करनी है, आप वो भी आप कर सकते हैं, बट हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस कॉन्वर्जेशन को आप सिविल रखें। इसमें आप कोई भी अपशब्द का आप यूज ना करें। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक करना पड़ेगा, बट आपके पूछने के सवालों में कोई भी पाबंदी इसमें नहीं है। अगर आपको अपने सवाल पूछने हैं तो या तो आप अपने सवाल जो जूम का जो Q&A सेक्शन है, आप उसमें इसको आप लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सवाल हमसे डायरेक्टली पूछने हैं तो इसमें रेज हैंड करके एक ऑप्शन है अलग है जो जूम में है। अगर आप वो रेज हैंड में क्लिक करेंगे तो आपको मैं अपने पैनल में इनवाइट करूंगा और आप फिर हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। जिन लोग को अपने सवाल कमेंट्स में लिखने वो लिख सकते हैं, जिनको अपना अगर हैंड रेज करना है वो अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं, और मैं एक एक करके सबको इस पैनल में लेके आऊंगा। ऑलराइट, हमारे जो सबसे जो पहला जो प्रश्न है वो तेजस बिंद्रे ने अपना हाथ उठाया है, तो मैं उनको इस पैनल में लेके आता हूँ। तेजस, आप अपना माइक को अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर। ठीक है, हाँ तेजस बोलिए। हाँ, तो एक्चुअली 2-3 छोटे छोटे सवाल है यहाँ पे मेरे। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग आपके साथ हैं, सो डोंट वरी। एंड एक चीज़ ऐसी हो रही है कि इंग्लिश और मैं मराठी और हिंदी यूज़ करता हूँ। सो जहाँ पे मैक्सिमम इंग्लिश या लैटिन लैंग्वेज है और उसमें नॉन लैटिन टेक्स्ट अगर आ रहा है तो वो कुछ भी नहीं पड़ता, मतलब इतना कचरा होता है उसमें, तो वो एक आपको फोकस करने की जरूरत हो सकती है। मैंने इमेज वगैरह भी शेयर किया है, मेल भी किया है, तो प्लीज वहाँ पे आप देखिए। ये एक चीज है। और दूसरी दो मुझे चीजें पूछनी थी। एक तो प्राइवेसी की बात आपने की है। सो जो प्रीवियस वर्जन है, जैसे 2.9 पॉइंट समथिंग वर्जन, लास्ट वर्जन जो था, वो अभी भी चल रहा है, लोग उसे यूज कर रहे हैं। तो आपने कुछ सोचा है कि सर्वर साइड में उससे कुछ ब्लॉक करे या कुछ भी, जो प्रीवियसली लोग यूज कर रहे हैं वर्जन, पुराने वर्जन, वो कुछ अगर हो सके तो। नहीं तो ऐसे ही वो पुराने वर्जन यूज करते रहेंगे और आपका सर्वर जो है वो यूज होते रहेगा। तीसरी चीज है कि मैंने सुना था कि वेब बेस या कंप्यूटर बेस भी आप लोग जल्दी ला रहे हैं, तो उसका टाइमलाइन क्या है वो मुझे जानना था। उसके लिए भी अगर आप लोग जल्द से जल्द कुछ करेंगे तो का चीज़ें जो है वो और आसान हो सकती है। तो यही मेरे कुछ चीज क्वेरीज थे। ओके तेजस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवालों के लिए। मैं इसमें से जो दूसरा जो सवाल है उसको मैं पहले आंसर कर देता हूँ। जो भी लोग अभी भी जो क्रैक या जो पायरेटेड हमारे ऐप के जो वर्जन है उसको उसको यूज कर रहे हैं, वो आगे जाके 1 महीने के अंदर उसको हम स्टॉप करेंगे। हमारे अभी पिछले जो सर्वर है उसमें कुछ डिपेंडेंसीज हैं, इसलिए वो हम लोग ने अभी भी उसके जो कुछ एलिमेंट्स ओपन रखे हैं, बट वो 1 महीने के ऊपर ये जो सारे जो हमारे ओल्ड वर्जन्स के जो ऐप हैं वो 1 महीने के ऊपर वो काम करना रुक जाएंगे। जो आपने जो पहला सवाल पूछा वो मैं
क्षितिज जी को वो सवाल देता हूँ। तो जैसे मैंने आपका सवाल समझा कि आपको मराठी और इंग्लिश के जो डॉक्यूमेंट पढ़ने में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो शायद क्षितिज उसका मेरे से बेटर उसका आंसर दे सकते हैं। नमस्कार तेजस जी, मैं क्षितिज अग्रवाल बोल रहा हूँ। और क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यस यस सर। हाँ, तेजस जी, जो आपका डॉक्यूमेंट है, आप ने अगर वो हमें ईमेल के द्वारा भेजा है जिसमें आप कह रहे हैं कि आपको दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली हम उस डॉक्यूमेंट को अपनी तरफ देखेंगे और उसको प्रयास करके देखेंगे कि उसमें कहाँ परेशानी आ रही है, और हम उसको अपने आने वाले वर्जन्स में किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं कि वो हिंदी, मराठी और इंग्लिश को ठीक से पढ़ सके। एक बात जो मैं आपको यहाँ कह सकता हूँ वो ये कि आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए अपने फ़ोन की जो लैंग्वेज सिलेक्शन है, अगर उसमें आप जाके मराठी को सिलेक्ट करें और फिर उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के देखें, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे। तो वो आप ज़रूर करके देखें। और कोई भी परेशानी होती है तो जैसा कि आपने हमें ईमेल में पहले ही डॉक्यूमेंट भेजा है, आगे भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें ईमेल के द्वारा कोई भी अपनी इमेज जिसमें आपको लगता है कि दिक्कत आ रही है, या कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट आप हमसे शेयर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, वो आप हमसे शेयर करें, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट आप हमें भेजते हैं वो डायरेक्टली हमारे पास आते हैं, जिनको हम टेस्ट करके देखते हैं कि कहाँ परेशानी हो रही है, और फिर उसके बेसिस पे हम अपने अगले वर्जन्स में इम्प्रूवमेंट्स लेके लाते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि ये इस प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं, इनमें परेशानी आ रही है और हमारा अगले वर्जन में वो परेशानी दूर होनी चाहिए। तो आपके भेजे हुए डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं टेस्ट करने के लिए और इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए। जरूर। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे लैंग्वेज में मराठी सिलेक्ट किया है, और होता ऐसा है कि मान लो 20 लाइन्स है इंग्लिश में, लैटिन लैंग्वेज में, और उसमें से 2 लाइन मराठी में है, तो वो नहीं पढ़ रहा है। मतलब जो ऑनलाइन उसने रिकग्नाइज करना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है। वो चाहे फिर प्रिंटेड के लिए भी हो या हैंड रिटन भी अगर टेक्स्ट हो मराठी में, तो ये दिक्कत वहाँ पे है। और जरूर आपको मैं और भी आगे कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे ऐसे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो जरूर हम भेजेंगे, डोंट वरी। प्लीज़, हाँ प्लीज़ आप वो डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूर भेजिए। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मराठी बेशक हमें ना आती है, बट हम ये तो पता कर सकते हैं कि कहाँ उसे मराठी पढ़ना चाहिए था, और हम उसको टेस्ट करके और उसको हम अपने आगे वाले अपने एआई को हम इम्प्रूव करेंगे, जिससे कि वो प्रॉपरली ये पता कर लगा सके कि यहाँ इंग्लिश है, यहाँ मराठी है, और उनको प्रॉपरली वो रीड कर। यस। Alright. और जो आपका अलग तीसरा जो सवाल था कि हम लोग वेब जो वर्जन कब ला रहे हैं, उसका आई थिंक उसका जवाब कार्तिक जो कानन आपको थोड़ा अच्छा दे सकते हैं। तो कार्तिक उसमें कुछ आप कुछ इंडिकेशन दे सकते हैं उसका क्या टाइमलाइन हो सकता है? Hello, Tejas. Yeah, like I think, sorry, first I'll be speaking in English because my Hindi is not as good as No Karthik problem. Mahadevan's or Kshitij's, so apologies. So yeah, we are working on a web version. We're hoping to have that ready by maybe the end of this year. At least the first version that will allow you to import a document, or if you already have documents that you have read with the Envision app on your on your phone, for example, you would also be able to read it on the web. So it's going to be a simple version to start with that will work on all web browsers, and then eventually we'll keep improving it just like how we're improving the Envision app. Yeah. Okay. Thank you, sir. Yeah. Is there some specific feature you want to see in the first version of the web app? Like, do you want it to do something specific? एक्चुअली नॉट। जो भी बेसिक फीचर्स ऑलरेडी इसमें हैं, जैसे इमेज या पीडीएफ स्पेशली रिकग्नाइज करना नॉन लैटिन टेक्स्ट के, तो वही इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी कुछ नहीं। वो काम अगर हम डायरेक्टली डेस्कटॉप पे कर पाए
कंप्यूटर पे कर पाए तो वो इजी हो सके। ठीक है, yeah, no, I think that's a good request, and I will make a note of it, and we'll work towards something by the end of this year. ऑलराइट तेजस जी, आपके सवालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऑलराइट, वो थे तेजस जी। मैं कुछ जो सवाल हैं जो Q&A में आए हैं, मैं उसको थोड़े उनको भी आंसर देता हूँ हमारे अगले पैनलिस्ट को बुलाने के पहले। किसी ने पूछा है कि किसी ने एनविजन ग्लासेस के बारे में सवाल किया है कि अगर वो एनविजन ग्लासेस का जो डेमो रिक्वेस्ट करते हैं, उसका जो डेमो है वो हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है। और ये ध्रुव सिग्बल ने पूछा है। अगर आप जो भी हमारा जो डेमो का जो फॉर्म है एनविजन क्लासेस का, जब आप उसको फिल करते हैं तो आप उसमें जो कमेंट में आप लिख सकते हैं, अगर आपको जो डेमो अगर आपको हिंदी में चाहिए तो उसका डेमो हम आपके लिए हिंदी में भी कर सकते हैं। एक और जो सवाल है वो है कि मुझे एनविजन AI इंडियन ग्रुप में ऐड होना है तो कैसे ऐड होएं। तो जहाँ तक ग्रुप का सवाल है, हमारे पास अभी एक टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है। उसको जो ऐड करने का जो लिंक है, हम आपको एक फॉलो अप ईमेल भेजेंगे इस वेबिनार के बाद, उसमें हम उसका लिंक ऐड कर देंगे। तो अभी मैं हमारे जो अटेंडीज हैं उसमें से मैं अवतार गुप्ता जी को ऐड करता हूं। अवतार जी, आप अपना एक माइक अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। Audio now unmuted. Leave. Alt plus Q button. L. Received a question colon asked at 6:34 p.m. colon Malayalam recognition is very poor. The question has 0 text answers. अवतार जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अवतार जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अवतार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो अगर आपको कुछ सवाल है तो आप अभी हमसे पूछ सकते हैं। आप अगर अपना जो माइक एक बार म्यूट करके वापस अनम्यूट करेंगे। Meeting information. Enter full screen. Amateur Gupta is talking. Button. Enter full screen left parent Alt plus F. Alta. Audio now muted. You are अवतार muted. जी, आपकी आवाज आ रही है? Or present hold the space key to temporarily unmute. अवतार जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरे को लगता है अवतार जी को कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज भी हो रही हैं, तो तब तक मैं एक और अटेंडी को बुलाता हूं। Caps lock on. Caps lock off. Amateur Gupta is talking. Button to activate. Press space. तो मैं अगला जो अरुण टेक दुआ जी हैं उनको ऐड करता हूं। अरुण जी, आप अपना एक माइक अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अरुण जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ अरुण जी, आप क्या आवाज आ रही है? Yeah, actually I have already got the reply. In fact, in some other question, it was regarding switching from Hindi English, So now I understand that if I select Hindi, it will automatically read English also, right? Yes. Yeah. So I got this reply. Thank you very much. All right, Arun ji. No worries. Thank you. Thank you. अच्छा, तो मैं अगला आशीष जी को इनवाइट करता हूँ। आशीष जी, आप अपना एक माइक आप अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
आशीष जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, सबसे पहले तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैं ये आशीष। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे पहले ऑटो लैंग्वेज डिटेक्शन का जो फीचर था, क्या पहले की तरह आप वो नहीं ला सकते इसमें? क्योंकि ये डिफिकल्ट हो रहा है ना हमारे हमारे लिए कि कौन सी इमेज मराठी है या कौन सी हिंदी है। ये कभी-कभी पता नहीं चलता है अगर पीडीएफ पे या इमेज पे नाम ना होता हो तो, है ना? तो पहले की तरह ये नहीं हो सकता है? जी, लैंग्वेज डिटेक्शन का जो फीचर है वो अभी भी हमारे स्कैन टेक्स्ट फीचर में है। तो वो अभी भी आपके पास अवेलेबल है। तो अगर जो लैंग्वेज डिटेक्शन का जो फीचर है वो हम लोग ने हटाया नहीं है, वो अभी भी हमारे स्कैन टेक्स्ट के फीचर में लैंग्वेज डिटेक्शन अभी भी है। बस इंस्टेंट टेक्स्ट में ये नहीं होता है, क्योंकि इंस्टेंट टेक्स्ट में आपको जो भी जो लैंग्वेज है आपको रीड करना है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, बट ये फीचर स्कैन टेक्स्ट में है। लेकिन जब वो कोई इमेज वगैरह आती है, इमेज या पीडीएफ, तो वो ठीक से पढ़ नहीं रहा है। अच्छा जी। और अच्छा, अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक इमेज है जिससे ये डिफिकल्टी लाइक हो रही है, जो उससे उसे रीड नहीं होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इमेज आप हम लोग को ईमेल करिए, ताकि हम समझ सके कि ऐसा अलग क्यों हो रहा है। क्योंकि यूजुअली रीड तो होना चाहिए। अगर आपके पास मराठी या अगर हिंदी में कोई इमेज है, और अगर आप उसको स्कैन टेक्स्ट अगर आप पे करते हैं, और आपका जो रीडिंग लैंग्वेज अगर आपका लाइक मराठी सेलेक्टेड हुआ है, तो वो मराठी के साथ वो हिंदी और इंग्लिश को भी रीड करना अलग चाहिए। और जो लैंग्वेज डिटेक्शन का जो ऑप्शन है वो जो रीड मेन्यू के उसके सेटिंग्स में ऑलरेडी है। तो अगर आपका जो लैंग्वेज डिटेक्शन ऑन है तो वो रीड करना चाहिए। बट अगर आपके केस में वो नहीं हो रहा है, तो आप वो डेफिनेटली हमको वो इमेज शेयर करके आप हमको सपोर्ट ईमेल में आप लिखिए, तो हम उसमें डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, कोशिश करूँगा। ओके। ओके आशीष जी, आपका कुछ और सवाल था? बस ये पूछना चाहता हूँ सर कि पहले जैसा ये एक्यूरेट काम करेगा इनविजन, क्योंकि अब फंडिंग वगैरह तो आप नहीं ले रहे हैं, तो क्या ये पहले जैसा जितना एक्यूरेट था तो उतना ही एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट मिलेगा इसका? जी, लाइक कोशिश तो लाइक वही है कि हम लोग ने पूरा ऑनलाइन से ऑफलाइन इसको लाइक हम लेके आए हैं, और हमारे को इसका कॉन्फिडेंस है कि अगर हम लोग इसमें एफर्ट अगर लाइक हम डालें, तो इसका एक्यूरेसी डेफिनेटली इम्प्रूव और एक होगा। और हमारा जो कोशिश है कि वो होगा कि जो इसके जो पहला था उससे भी ज़्यादा उसका एक्यूरेसी इम्प्रूव हो। तो हमारा उसमें पूरा उसमें जो हमारा जो अलग फोकस और एफर्ट है अभी उसमें रहेगा। अभी तक हमारा जो फोकस एफर्ट था वो जो इसको हैक कर रहे हैं उनको कैसे स्टॉप करे, जो इसको क्रैक कर रहे हैं उसको कैसे स्टॉप करे, हमारा तो ये सब चीज़ों में हमारा एफर्ट बहुत ज़्यादा था। बट अभी जो हमारा एफर्ट है वो सारा इसी बात में फोकस रहेगा कि हमारा जो ऑफलाइन फंक्शनैलिटीज़ हैं उसका एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव किया जाए। तो हमको ये बात का कॉन्फिडेंस है कि हमारे एफर्ट्स की वजह से इसका एक्यूरेसी डेफिनेटली इंप्रूव होगा। ठीक है सर। ओके आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओ- मैं फिर फिर शैलेंद्र जी को इनवाइट करता हूँ। और नहीं, मैंने सूरज जी को इनवाइट किया है। तो सूरज जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाय सर, आई एम ऑडिबल? यस। Yes. तो एक्चुअली सर वैसे दो सवाल थे। पहला सवाल तो ये है कि सर एक्चुअली जो स्कैन टेक्स्ट में गाइडेंस का जो फीचर था, तो वो सर सिंगल पेज के लिए सर तो पहले था, लेकिन अभी सिंगल पेज के लिए तो आई थिंक स्टॉप कर दिया होगा, तो वो नहीं मिल रहा है, और मल्टीपल स्कैनिंग के लिए मिल रहा है। और दूसरा सवाल ये था कि सर अगर हम पीडीएफ के 2 पेज या 4 पेज को स्कैन करते हैं, तो सर 1 बाय 1 पेज कॉपी करने का फीचर आ सकता है क्या उसमें? सर दो सवाल थे। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू जी। सो जो
जो पहला सवाल है, अगर मैं समझा ठीक से, तो आप बोल रहे हैं जो गाइडेंस का फीचर है वो अभी स्कैन टेक्स्ट में सिंगल पेज में आपके लिए नहीं काम कर रहा है, तो ये अनयूजुअल है। काम तो करना चाहिए, तो वो सिंगल स्कैन और बैच स्कैन में दोनों में काम करना चाहिए। तो ये मैं डेफिनेटली क्षितिज जी लाइक इधर ही हैं, तो मैं उनको ये फीडबैक देता हूँ, तो वो एक बार लाइक चेक करके आपको बता सकते हैं। बट जो गाइडेंस है वो दोनों में काम होना चाहिए। उसमें एक अपडेट भी मैं आपको दे सकता हूँ कि हम लोग ने जो डॉक्यूमेंट का जो गाइडेंस है उसमें एक इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है। हम लोग ने एक इम्प्रूव्ड उसका लाइक वर्जन अब बनाया है, जो आपको ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे आप पोजीशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ बताता है कि पूरा डॉक्यूमेंट फ्रेम में है कि नहीं, बट आगे जाके हमारा जो उसमें अपडेट आएगा वो उसमें ये भी बताएगा कि आपको अपना फोन को एडजस्ट किस डायरेक्शन में करना है ताकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से कैप्चर हों। तो ऑन गाइडेंस के फ्रंट में इम्प्रूवमेंट्स डेफिनेटली होगा। और जो सेकंड आपने फीचर बोला, आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो उसके बारे में? तो आपने बोला कि जो लाइक पीडीएफ है आपको उसका सिर्फ एक पेज कॉपी करना है, तो हाँ एक पेज कैसे कॉपी होगा? यस सर। अंडरस्टूड। ये डेफिनेटली अच्छा फीडबैक है। अभी तक हमारे अलग प्लान में इस तरह का कुछ फीचर का रिक्वेस्ट नहीं था, तो ये हमारे रोड मैप में अभी तक तो नहीं था, बट अगर ऐसा एक रिक्वेस्ट है तो इसको डेफिनेटली हम लोग अपने पाइपलाइन में ऐड कर सकते हैं, और हम इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका है वो हम इन्वेस्टिगेट थोड़ा करके हम आपको इसमें अपडेट दे सकते हैं। थैंक यू सर। ओके सूरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं शैलेंद्र कुमार जी को इनवाइट करता हूं पैनल में। और शैलेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आ रही है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले खुशी जाहिर करता हूं कि आप सबने बहुत मेहनत करके और इस तरह के एप्लीकेशन को डेवलप करने का काम किया है। और निश्चित रूप से जो हिंदी भाषा के पुस्तकों को पढ़ने में, पीडीएफ को खास करके पढ़ने में जो एक बाधा पेश आती है, उसको दूर करने का बेहतर प्रयास किया है। ये बात अलग है कि कॉलम और टेक्स्ट के कॉलम के डिटेक्शन में समस्या जस की तस बनी रही, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद थी कि आगे होगा और आप नए प्रयास के साथ प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2-3 मेरे प्रश्न ये हैं कि एक तो ये कि अगर सब्सक्राइबर पे कॉस्ट बढ़ाना पड़े एनुअल या मंथली, तो सर्वर कॉस्ट को मीट करने के लिए अभी तक के जो डाटा है, जितने सब्सक्राइबर हैं, उस हिसाब से क्या कॉस्ट हो सकती थी? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि जैसे मैंने 3 साल पहले खरीदा 2019 में लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, तो मुझे तो मैंने 3000 रुपए में खरीदा था, तो कुछ सेल वेल आया था, तो मैं तो अपने पैसे को जस्टिफाई करता हूँ। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने ये पैसे गलत खर्च किए, ये मैं अपना वैल्यू फॉर मनी मानता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 6 महीने पहले खरीदे या 4 महीने पहले खरीदे, वो अपने पैसे को कैसे जस्टिफाई करें? और जो तीसरा सवाल मेरा ये है कि ऑनलाइन जो एक्यूरेसी है, इसमें समस्या आने वाली है, या ये किसी और के सर्वर पे बेस्ड है, या ये कहीं और के रिसोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा है? इसका पता तो आपको पहले से ही था, इसके कॉस्टिंग का भी अंदाजा होगा। तो एक अच्छी क्वालिटी डिलीवर करने के बाद पुअर क्वालिटी डिलीवर करते हुए आगे कैसे सस्टेन कर पाएगा एनविजन? ये मेरा तीसरा सवाल है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवालों के लिए शैलेंद्र जी। तो मैं जो स्टार्टिंग का जो एक प्रश्न है, मैं उसका और जो तीसरे प्रश्न का एक साथ मैं उसका उत्तर देता हूँ। तो जो हमारा जो सर्वर में क्या कॉस्ट होगा, वो पर अगर ये ऐप को जो कोई भी अगर उसको क्रैक ना करे, उसको हैक ना करे, तो हमारा जो भी सब्सक्रिप्शन था जो करीबन 69 रुपीज पर मंथ और 650 रुपीज फॉर ईयर, उस फीस में ये सस्टेनेबल हो सकता था। बट इस बिकॉज जो कितने लोग इसको क्रैक या उसको हैक कर रहे हैं,
उसका अनुमान लगाना डिफिकल्ट है, और वो लोग कितना इस ऐप को यूज करते हैं उसका अनुमान लगाना डिफिकल्ट है। उसके हिसाब से हमारा जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होता, और वो बिकॉज उसको स्टॉप नहीं कर सकते, वो इंक्रीज होता ही रहेगा जितने लोग इसको क्रैक और इसको हैक करके इसको यूज करेंगे। और हमारा ये भी उसमें फियर था, अगर हम लोग ने ऐप का प्राइस इंक्रीज किया तो जो लोग अभी 69 या 650 रुपीज करके भी जो लाइक पे कर रहे हैं, वो लोग भी स्टॉप करके इसका जो क्रैक वर्जन यूज करना स्टार्ट कर देंगे, जो हमारे लिए और भी डेट्रीमेंटल होगा। और जितने लोग क्रैक वर्जन इसका यूज करेंगे, उतना ही कॉस्ट जो लोग इसके लिए अलग पे कर रहे हैं वो इंक्रीज अलग होता रहेगा। तो ये काफी अलग मुश्किल सवाल है आंसर करना कि कितना इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कितने लोग इसको क्रैक करके कितना इसको यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए एज अ कंपनी हर बार जब भी कोई एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजता है, वो हर रिक्वेस्ट का उसमें कॉस्ट है, और जितने लोग इसको क्रैक करेंगे उतना हमारे लिए ये कॉस्ट इंक्रीज अलग होता रहेगा। तो जब हमने एनविजन स्टार्ट किया था, हमारा एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अभी लगता है कि एक होप था कि हम लोग ये जो क्रैकिंग का जो इशू होगा वो काफी बहुत ही माइनॉरिटी इशू होगा, बहुत ही कम परसेंट लोग होंगे जो इसको क्रैक करते होंगे, या हम लोग का करीबन 10% से कम लोग होंगे जो ऐप को क्रैक करके यूज करेंगे। बट हमारा ये अनुमान नहीं था कि जो क्रैकिंग और हैकिंग का प्रॉब्लम इतना होगा कि वो एक पॉइंट में मेजॉरिटी बन जाएगा। तो उस हिसाब से ये इशू है जो जब हम लोग ने ये ऐप लॉन्च किया था, हम लोग को इतना अनुमान नहीं था कि ये प्रॉब्लम हमारे लिए इतना हो जाएगा। तो ये अभी हाइंडसाइट में हम लोग इसको सोच सकते हैं कि शायद हम लोग को स्टार्टिंग से ही ऑफलाइन में ज्यादा फोकस देना था। बट हम लोग ने जब ये ऐप बनाया तो हम लोग को इस बात का ठीक से अनुमान नहीं था कि जो क्रैकिंग कितना बड़ा इशू हमारे लिए हो सकता है। और ये ना सिर्फ हमारे लिए बट और भी ऐप जो डेवलपर हैं इस फील्ड में, हमारी उन सबसे भी बात होती है, ये प्रॉब्लम सबके लिए है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए किसी के पास भी इसका सोल्यूशन नहीं है। और जब आपका दूसरा जो सवाल था कि वो जो कॉस्ट जिन लोग ने अभी भी सब्सक्राइब किए हैं वो लोग कैसे जस्टिफाई करें, ये काफी अच्छा सवाल है। ये सवाल हम लोग भी इंटरनली काफी इससे हम लोग जूझते हैं। बट एक वे हो सकता है जस्टिफाई करने का कि बिकॉज आप जैसे लोग ने हमारे ऐप को सपोर्ट किया, उसके वजह से हम अब एटलीस्ट अभी ऐप को इस मुकाम पे पहुंचा सकें, ताकि एक क्वालिटी ऑफ फीचर सारे जितने भी ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं उन सब के लिए अभी वो फ्री में अवेलेबल है। तो जिनने भी ऐप का जो किसी भी पॉइंट में सब्सक्राइब किया, वो सारा सब्सक्रिप्शन का जो भी अमाउंट था वो सब इस काम में यूज हुआ कि हम लोग अपने ऐप को इम्प्रूव करें और सारे लोग को ये ऐप हम लोग फ्री में ऑफर अलग करें। तो ये आप उस नजरिए से आप सोच सकते हैं कि आपके एफर्ट्स की वजह से अभी ये ऐप सब लोग को अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और आगे जाके अगर इस एफर्ट्स को हम जाके अगर ऐप का एक्यूरेसी वापस इम्प्रूव अलग कर सकते हैं जिस लेवल में वो पहले था या उससे भी अलग बढ़िया, तो ये सब आप जैसे लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही होगा। तो जिन लोग ने भी सब्सक्राइब किया है वो जो भी उसका जो रेवेन्यू है वो सारा रेवेन्यू इस बात में स्पेंड होगा कि इस ऐप को वापस कैसे इम्प्रूव किया जाए एक्यूरेसी वाइज। बट स्टिल जितने भी लोग हैं जिनको इस ऐप का यूज करना है उन सबको ये ऐप फ्रीली अवेलेबल हो। तो इन दो एस्पेक्ट्स में उस कंट्रीब्यूशन का इन दो एस्पेक्ट्स में उसका यूज होगा। मैं होप करता हूँ कि इससे आपके सवालों का उत्तर होगा। आपको कुछ और सवाल था शैलेंद्र जी कि ये उत्तर आपको सेटिस्फैक्टरी लगा? नहीं, इस संदर्भ में तो मेरा सवाल यही था। लेकिन इसमें काफी सारे मतलब स्टूडेंट्स को मैंने भी परचेस करवाया, मतलब 4-5 तो यही जो मतलब इस क्वालिटी को देखते हुए मतलब उन्होंने खरीदवाया मैंने, क्योंकि मतलब पढ़ने में बहुत सहायक था, खास करके हिंदी टेक्स्ट को पीडीएफ को कन्वर्ट करके पढ़ने में बहुत सहायक। स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कष्टदायक बात समझ में आती है, बाकी तो जो लोग कर रहे हैं या जिनकी जॉब है जैसे मेरी है तो मैं तो जस्टिफाई कर लूंगा। स्टूडेंट का थोड़ा मामला अच्छा नहीं लगा।
इनसे बस, और कुछ नहीं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ एक और भी सवाल शैलेंद्र था जी। मेरा, लेकिन मैं वो पूछ तो दिया मैंने। जी जी जी, ठीक है सर। हाँ जी, आपका एक और सवाल था, आपने बोला। हाँ, एक और सवाल तो था, लेकिन वो मैंने पूछा था और वो हम्म, मेरे दिमाग से ही अभी निकल गया है, तो आप। अच्छा जी, ठीक है। हाँ चलन जी, मैं आपकी बात से काफी अलग सहमत हूँ, और हमारी यही आशा है कि अगर हम ऐप का जो एक्यूरेसी वापस उस लेवल में इम्प्रूव अलग कर सके ऑफलाइन, और उसको लाइक फ्री रखते हुए, तो शायद जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी लोग इसमें डिपेंड करते हैं वो लोग इससे अलग हैप्पी होंगे। बट हाँ, हम थोड़ा, हम लोग को, हमारा जो फोकस है अभी उसी में है कि इसका एक्यूरेसी वापस कैसे उस लेवल तक लेके आ जाए, बट वो ऑफलाइन रख के ही होगा, तो उसी में हमारा अभी अलग फोकस रहेगा। शुक्रिया शैलेंद्र जी आपके सवालों के लिए। मैं अभी थोड़े जो और Q&A सेक्शन में जो कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं, मैं उनके उत्तर दे देता हूँ। शिव एक शिव नारायण जी ने पूछा है कि कुड यू मेक ऑटो स्विचिंग TTS एंड ऑटो डिटेक्शन ऑफ लैंग्वेज द मोस्ट परफेक्ट। थैंक यू शिव नारायण जी, हमारी अलग कोशिश तो वही रहेगी इसको इम्प्रूव इम्प्रूव अलग करने के लिए। उनका ही दूसरा सवाल है, कुड यू प्लीज ऐड अ बेस्ट HQ वॉइसेस अवेलेबल इन अ नेचुरल रीडर एंड EV रीडर इनटू एनविजन आई। ये नेचुरल रीडर और EV रीडर से मैं फेमिलियर तो नहीं हूँ, बट आई एम अज्यूमिंग दे आर TTS एक सॉफ्टवेयर। अगर वो पेड TTS सॉफ्टवेयर है तो इस आई डोंट थिंक एनविजन अभी उसको सस्टेन कर पाएगा कि हम लोग पेड TTS वाले वॉइसेस ऐड करें फ्री में। बट अगर ये TTS वॉइसेस अगर आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आप इसको एनविजन ऐप में आप ऑलरेडी इसको ऐड कर सकते हैं। और कुछ सवाल थे। Is there any plan to bring a camera feature to the app? जी अभी फिलहाल तो ऐसा कैमरा फीचर का प्लान नहीं है, बट अगर ये कुछ एक ऐसा अगर अगर एक रिक्वेस्ट है जो बहुत लोग से आता है, तो हम इसको डेफिनेटली हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। एक सवाल है कि the app is free now, so like what is the source of funding further like development? ये तो हमारे पास अभी कुछ चीजें हुई हैं जो हमारे पास जो फंडिंग का भी एक और जो सोर्स है वो एनविजन के ग्लासेस है। जैसे आप लोग को पता है, हम लोग एनविजन का जो 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 सॉफ्टवेयर है वो हम लोग एक लाइक स्मार्ट ग्लास के माध्यम से भी उसको हम लोग बहुत लोगों तक उसको उसको लोग पहुंचा पा रहे हैं। तो जो स्मार्ट ग्लासेस का जो रेवेन्यू है वो अभी धीरे धीरे हमारे लिए इंक्रीज हो रहा है। तो उस फंडिंग से हम इसको ऑफसेट कर सकते हैं। हमारा अलग फंडिंग के और भी अलग प्लान्स हैं। हम लोग बहुत सारे कंपनीज से जाके सीधा हम लोग अब बात कर रहे हैं, जो ये सॉफ्टवेयर और हमारे जो एनविजन का जो सॉफ्टवेयर का जो स्वीट है वो इसको 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 परचेज कर सकें अपने एम्प्लॉयर्स के लिए। तो हमारे पास अभी ऐसे फंडिंग के ऑप्शंस हैं। जो हमारा जो ऐप का जो सॉफ्टवेयर है वो हम लोग या तो एक लाइक स्मार्ट ग्लासेस के माध्यम से या सीधा उसको लाइक कंपनी को लाइक हम बेच के, इन दो माध्यम से हमारा जो फंडिंग है, हम लोग को अभी कॉन्फिडेंस है कि इन दो अलग माध्यम से जो अलग फंडिंग आएगा वो एक फ्री ऐप को बहुत सस्टेन और उसका आगे उसको डेवलप करने में एनफ रहेगा। और भी सवाल हैं। एक सुबिन हाँ, एक सवाल है सुबिन अलग वर्गीस अजी से, जो बोल रहे हैं कि जिनका
कंप्लेन है कि हम सिर्फ हिंदी और तमिल लैंग्वेजेस वालों के लिए ये वेबिनार रख रहे हैं. Subin, I'm sorry, we are limited by the languages that we as Envision a team no, we are a small team and we can only speak a limited number of languages at the moment. So yeah, I apologize if we cannot speak multiple languages, but if you have any the questions or issues that have not been addressed in this call, please send us an email and then we can jump on a call with you separately to answer that. All right, अभी मैं वापस कुछ लोगों को बुलाता हूँ on the panel. और तो I'm inviting नवनीत जी. नवनीत जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. गुड इवनिंग सर. हाँ नवनीत जी, बोलिए. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू इस एप्लीकेशन को हमारे लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए. और मेरे लिए बहुत बड़ी बात मैं ये कहूँगा और ये भी कहूँगा कि ये बहुत पॉजिटिव मेरे लिए रहा कि जब से आपने ऐप डेवलप किया है तभी से मैं इस एप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ. और मुझे ये एप्लीकेशन इतना अच्छा लगा था कि मैंने 2018 में ही इसे परचेज कर लिया था. तो इसकी एक्सेसिबिलिटी मेरे लिए इतनी अच्छी रही कि मैंने दूसरे किसी इतने फ्री एप्लीकेशंस आए और ना जाने क्या क्या सब्सिडीज वगैरह जो भी रही हो इनकी. बहुत सारे जो है मैं अलग अलग ग्रुप्स में था, वहाँ मुझे पढ़ने को मिलता था आर्टिकल्स, बट बावजूद उसके मैं इनविजन छोड़ के किसी और एप्लीकेशन की तरफ नहीं गया. ये आपकी मेहनत का ही रिजल्ट है ये. बट इन फ्यूचर ये एप्लीकेशन मेरे मन में भी यही सवाल है, कैसा रिस्पॉन्स देगा, कितना अच्छा एप्लीकेशन का वर्क रहेगा नहीं पता. सो मैं भी इस बात से, हालांकि आपने इसके रीजंस बता दिए, जबकि मुझे जब पता चला था कि एप्लीकेशन फ्री कर दिया तो काफी मेरे मन में ये नाराजगी थी कि आखिर ये क्यों डिसीजन लिया. तो खैर समझ सकते हैं जो भी रिजल्ट रहे हों. अब मैं मेरे कुछ सवाल की तरफ आता हूँ. इससे पहले भी जो आपका वेबिनार हुआ था उसमें भी मैं शामिल हुआ था. सो ऐप को लेके तो मेरा कोई खास सवाल है नहीं, बट मैं इनविजन ग्लास के बारे में बात करना चाहूँगा. मैं इनविजन ग्लास परचेज करना चाहता हूँ. अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले मैंने उसका प्राइस चेक किया था. इंडियन कंट्री के मतलब इंडिया के हिसाब से 2,27,300 रुपीज प्राइस था इनविजन ग्लास का. तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो इंडिया की कंट्री है, जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, इनकी जो कंडीशन है, जो फाइनेंशियल कंडीशन की हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हाई मैं मानता हूँ. और दूसरा मुझे आपसे ये जानना है कि अगर इतना हाई लेवल का प्राइस है तो एप्लीकेशन और ग्लास में क्या डिफरेंस है, ये जरा बताने का कष्ट कीजिए. थैंक यू. श्योर. बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी आपके सवालों का. जिसका जो पहला एस्पेक्ट है मैं उसका थोड़ा पहले बात कर देता हूँ. तो जो ऐप में जो देख तो ये जो कंसर्न है जो आपको हुआ कि अभी ऐप जो फ्री हो गया है उसमें आके जाके डेवलपमेंट्स अलग होंगे कि नहीं, ये काफी वैलिड कंसर्न है और मैं ये बात पूरी तरह से समझ सकता हूँ कि ऐसे ही कंसर्न और भी लोगों को थे. आई थिंक इसका जो बेस्ट जो उत्तर है, ऑफकोर्स मैं आपको अभी इसका प्रॉमिस दे सकता हूँ कि ऐप में डेवलपमेंट होंगे, बट आई थिंक हमारे जो एक्शंस हैं वो इसमें इस बारे में आपको जो वो ज़्यादा विश्वसनीय होंगे. तो आगे जाके हमारा डेफिनेटली प्लान है कि ऐप को कंस्टेंटली इम्प्रूव और डेवलपमेंट उसमें होता रहेगा. तो आप इस बात को आप खुद एक्सपीरियंस आप कर पाएंगे जब ये अपडेट्स आएंगे आपको. तो हमारा तरफ से पूरा प्लान है कि ऐप में डेवलपमेंट अलग होता रहेगा. हमारा एज अ कंपनी को ऐसा कोई प्लान नहीं कि ऐप का डेवलपमेंट स्टॉप होगा ओनली बिकॉज द ऐप इज नाउ फ्री. तो दूसरा बात है एनविजन ग्लासेस का, वो भी काफ़ी वैलिड पॉइंट है. उसका जो अभी जो प्राइस अगर आप कन्वर्ट करें तो लगभग 2 लाख रुपीस तक आता है. इसको हम लोग इंडियन मार्केट में एक्चुअली
उसको लाइक उसका 5 लाख रुपीस में ऑफर लाइक कर रहे हैं, तो वो थोड़ा डिक्रीज प्राइस में। बट एनविजन ग्लासेस में प्रॉब्लम है कि बिकॉज वो एक लाइक हार्डवेयर है, ये जो स्मार्ट ग्लास है वो हम लोग गूगल से वो उनका हार्डवेयर लाइक हम लेते हैं, और उस हार्डवेयर में हम अपना सॉफ्टवेयर जिसको ऐड करके एज अ प्रोडक्ट ऑफ एनविजन करके उसको हम बेचते हैं। तो उसका जो बेसलाइन जो हार्डवेयर का जो कॉस्ट है वही बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए हम लोग उसमें जो सॉफ्टवेयर हम लोग जितना भी उसमें अलग सब्सिडी दें, वो एक पॉइंट के बाद वो नहीं सस्टेनेबल होता है, क्योंकि वो उसका जो हार्डवेयर का जो कॉस्ट है वो ही बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए हमारा जो एनविजन क्लासेस है वो हम लाइक मेनली उस कंट्रीज में इस वर्जन को सेल कर रहे हैं जहाँ पे या तो इंश्योरेंस इसका जो पैसा देती हो, या कोई भी स्टेट का एजेंसी जो इसके लिए पैसे देती हो, या कोई एम्प्लॉयर्स हैं जो इसके लिए इसका लाइक परचेस कर सकते हैं। इन माध्यम से जो एंड यूजर हैं उन लोग को इस कॉस्ट का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। देयर आर अदर मैकेनिज्म्स जहां से इसका जो कॉस्ट है वो ऑफसेट अलग हो जाता है। बट मैं समझता हूँ कि इंडिया में ऐसे कोई मैकेनिज्म्स अलग है नहीं। बट हमारा जो प्लान है वो ये प्लान है कि हम एक ऑल्टरनेट स्मार्ट ग्लास लेके आएंगे जो इंडिया के लिए होंगे, बट उसके लिए हम लोग को एक लो कॉस्ट लाइक हार्डवेयर भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एनविजन जो है वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। हम लोग हार्डवेयर अपना खुद का नहीं बनाते हैं, बट हम लोग इस टाइम में बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर कंपनीज से हमारी बात चल रही है जो एक लो कॉस्ट स्मार्ट ग्लास भी बना सके। और जब ऐसा कोई लो कॉस्ट जो स्मार्ट ग्लास हमारे सॉफ्टवेयर के साथ जब काम करने लगेगा, तब आई थिंक वो इंडियन मार्केट के लिए काफी सूटेबल होगा। और उसका प्राइस आई बिलीव अराउंड जो 40,000 to 50,000 रुपीज तक हो सकता है। तो ऐसे एक स्मार्ट ग्लास जो मैन्युफैक्चरर से हम लोग पार्टनरशिप करना चाहेंगे जो इस प्राइस पॉइंट में एंड यूजर के लिए जो प्रोडक्ट हमारे साथ अब तक बना सके। बट अभी वो एटलीस्ट 2 years हम लोग को लगेगा उस तरह का स्मार्ट ग्लास बनाने के लिए। आपने जो एक और सवाल पूछा कि हाँ जी पूछिए। हाँ, मैंने एक सवाल मेरे मन में और आया है और पूछा हाँ भी जी। था कि मैंने कि एप्लीकेशन और ग्लासेस में जो है क्या डिफरेंस है इतना हाँ जी। कि उसकी प्राइस इतनी हाई लेवल की है। दूसरा मेरा चलो ठीक है, आप इसका जवाब दे दीजिए, बाद में मैं नेक्स्ट सवाल और पूछ लूंगा। हाँ जी श्योर। तो बेसिकली लाइक डिफरेंस जो होता है वो काफी एक्सपीरियंस में ही होता है। जब आप एक स्मार्ट ग्लास जब आपने पहना है, तो आप जो भी टास्क है वो आप एक हैंड्स फ्री मैनर में आप कर सकते हैं। तो अगर आपको अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स रीड करना है, या कहीं आप ऐसी जगह में काम करते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे सामान उठाने हैं और कुछ रीड करना है, तो उन सिचुएशन में जो ग्लासेस हैं वो आपको एनविजन के सारे फीचर्स को एक्सेस देते हैं पूरे एक हैंड्स फ्री तरीके से। तो वो जो एक हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस है उसके लिए बहुत जो उसका जो एक्सपीरियंस है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है बहुत लोग के लिए। और वो लोग इसलिए अब प्रेफर करते हैं एक स्मार्ट ग्लास लाइक एज अपोज टू लाइक स्मार्टफोन ऐप। और उसमें कुछ और एडवांटेजेस हैं, जैसे इन एडिशन टू जितने भी उसकी एआई फंक्शनैलिटीज हैं वो हैं। बट कुछ लोग इस ग्लासेस से लाइक वीडियो कॉल भी करते हैं। तो जैसे आप अपने फ़ोन से जैसे आप एक व्हाट्सएप या फेस टाइम अगर आप कॉल कर सकते हैं, तो वैसा ही कॉल वो लोग इस स्मार्ट ग्लासेस से करते हैं, ताकि जो उनके ऑपोजिट एंड में जो भी उसको उठाता है वो उनको पूरा इनके जो पर्सपेक्टिव से सब कुछ दिखता है, और वो एक रिमोट तरीके से इनको कुछ भी असिस्टेंस जो इनको रिक्वायर्ड है वो ऑफर कर सकते हैं। और इनके बिकॉज जो ये जो वीडियो कॉल है वो एक हैंड्स फ्री तरीके से हो रहा है। तो अगर आप कहीं आउटडोर्स हैं और आपके हाथ में अगर
केन या कुछ है, उसके बाद भी आप ये जो कॉन्वर्जेशन है आप टोटली एक हैंड फ्री तरीके से आप ये कॉन्वर्जेशन आप कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ एडवांटेजेस हैं जिसके लिए बहुत लोग एक स्मार्ट ग्लास को प्रेफर करते हैं लाइक यूज करना। बट ये जो स्मार्ट ग्लास है वो सबके लिए टेक नहीं है, बट ऐसे जो लोग हैं जिन लोग के लिए ये जो हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस काफी इंपॉर्टेंट है, उन लोग के लिए ये ज्यादा वैल्यूबल होता है। ठीक है सर, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो प्राइस है उसका भी पे करने को जो है तैयार हूँ, और श्योर मैं आपका ये ग्लास जो है कुछ ही समय में परचेज करूंगा। बट जैसा कि आपने बताया कि इसमें 1.5 लाख के समथिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा। हाँ जी। बट उसमें जो प्राइस है वो 2 लाख, मैंने जो बताया 27,300 शो हो रही है। तो हाँ एक जी। बार के लिए तो मुझे ये पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जैसे आपने बताया 1.5 लाख है, तो वो तो उसमें जो अमाउंट ही शो नहीं हो रहा है, वो हाँ जी। अमाउंट भी यही शो हो रहा है। हाँ जी, तो बेसिकली वो इशू क्या हो रहा है, क्योंकि जो हम लोग अमाउंट हमारे जो वेब शॉप में उसको सेट करते हैं वो लाइक डॉलर में हम लोग उसको लाइक सेट करते हैं, और विद डॉलर से जो रुपीस का जो लाइक फ्लक्चुएशन होता है उससे इसका प्राइस ऊपर नीचे होता है। बट अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैं आपको एक सेपरेटली एक इनवॉइस भेज सकता हूँ जिसमें एग्जैक्टली अलग 1.5 लाख रुपीस का अमाउंट होगा, और आप उसमें से आप इसका पेमेंट आप कर सकते हैं, और वो भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और इसमें हम लोग के पास लाइक 30 डेज का फ्री रिटर्न पॉलिसी भी है। तो अगर आपने एक बार इसको ऑर्डर किया और आपने इसको 30 डेज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्लासेस आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप ये क्लासेस हम लोग को वापस भेज सकते हैं, और आपके जो पूरे अमाउंट है हम उसको रिफंड कर देंगे। ओके सर, फाइनली मेरे 2 सवाल है, सॉरी मैंने आपका लॉन्ग टाइम नहीं लिया नहीं। इसके लिए। हाँ जी। फर्स्ट सॉरी, एक तो मेरा सवाल ये है कि इंडिया के अंदर क्या अभी कोई ऐसा पर्सन है जिसने इनविजन ग्लास परचेज किए हो? और सेकंड मेरा ये है कि इंडिया के अंदर ये अवेलेबिलिटी है ऑर्डर की, कि आप मुझे जो है वो डिलीवर कर पाएं ये प्रोडक्ट? हाँ जी, तो इंडिया में तो ऑलरेडी काफी लोग हैं जिन लोग ने इसको परचेज किया है, और अगर आप इसको ऑर्डर करें तो इसका 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 डिलीवरी आपके इंडियन एड्रेस में हो जाएगा। तो हाँ, तो ये बहुत तो पॉसिबिलिटीज हैं, तो ऑलरेडी इंडिया में हैं लोग जिन लोग ने इसको ऑर्डर किया है और उसको यूज भी कर रहे हैं। सर आई हम्बल रिक्वेस्ट हो, कोई 1-2 नाम जो बता पाएं, ताकि हम खुद जाके उनसे इसका एक्सपीरियंस ले सकें कि आखिर कैसा है इसका एक्यूरेसी वगैरह, या फिर जो यूज करने के बाद उनका जो अपना एक्सपीरियंस है वो कैसा है? हाँ, मैं समझ सकता हूँ, बट फ्रॉम लाइक प्राइवेसी स्टैंड पॉइंट से मैं आपको उनके नाम नहीं बता सकता, या तो उनका जो कांटेक्ट भी नहीं बता सकता। मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं सबको एक ईमेल लिख सकता हूँ ये पूछ के कि किसी को इंटरेस्ट है, अगर कोई ऐसा है उनको उनसे बात करने के लिए, अगर उनमें से किसी का पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है तब मैं आपके साथ उनका डिटेल्स शेयर कर सकता हूँ, बट ऐसा अपफ्रंट मैं किसी भी कस्टमर्स का डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता। आई एम सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम सर। फाइनली जब भी मेरा जो इंटरेस्ट होगा, हालांकि मैं लूंगा ये श्योर है, बट जब भी मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट जगेगा, है अलग इंटरेस्ट, सॉरी, बट जब भी मेरी इच्छा होगी, मान लीजिए मैं लेना चाहूँ, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट कांटेक्ट आपसे कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ फिर किस मेल के अलावा कोई और कोई जो है जैसे कांटेक्ट बेस पे, या फिर और कोई जरिया हो आपसे कांटेक्ट करने का? हाँ जी, मैं आपको अपना ईमेल भेजता हूँ, तो ईमेल ही बेस्ट है हमारे से इस बारे में संपर्क करने के लिए, ताकि मैं जो भी इनवॉइस या और भी कुछ डिटेल्स है वो मैं आपको ईमेल के थ्रू ही टेक भेज सकता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके नवनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ऑलराइट, मैं फिर एक और पैनलिस्ट को बुलाता हूँ। तो सरिता जी, आप अपना टेक माइक अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सरिता जी, आप अपना टेक माइक अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी, आ रही है। जी। Good evening. तो थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा ऐप डेवलप किया और इससे एक्चुअली पढ़ने में बहुत हेल्प होती है। एज अ स्टूडेंट हमको बहुत सारी बुक्स अगर रीड करनी है तो इसका डॉक्यूमेंट लोडिंग टाइम भी कम है। मतलब अगर 300-400 पेज की या 800 पेज की भी अगर बुक की पीडीएफ में पढ़ना चाहूँ तो ये 30 सेकेंड के अंदर शायद वो लोड कर लेता है, पूरी बुक लोड ले लेता है और रिजल्ट प्रीव्यू फिर सामने होते हैं हमारे। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे हिंदी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए यूजीसी नेट की बुक ही हो गई कोई, तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स वाले जो कॉलम्स होते हैं उसमें ये होता है कि नंबरिंग के हिसाब से आंसर लिखे होते हैं। जैसे पूरे क्वेश्चंस हो गए, अब लास्ट में आंसर होते हैं, तो ये कॉलम कॉलम टू कॉलम लिखे हुए होते हैं। और अगर जिस हिसाब से इनविजन रीड करता है वो फर्स्ट कॉलम के लाइंस पहले पूरी रीड करेगा, फिर सेकंड की रीड करेगा, फिर थर्ड की। तो उसमें ये होता है कि नंबर सीक्वेंस से हमको नहीं मिल पाते हैं। जैसे एक के बाद सीधे 4 1 4 14 11 इस टाइप के सीक्वेंस में आते हैं। फिर 2 कॉलम 2 में नंबर 2 वाले सीक्वेंस आते हैं। तो इसमें पढ़ने में काफी डिफिकल्टीज होती है। आपने जो कॉलम डिटेक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया है वो भी मैंने ऑन ऑफ करके देखा, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये अपडेट आप दें? अगर हम वो ऑप्शन ऑन रखें तो जिस तरीके से अभी इनविजन रीड कर रहा है उस हिसाब से वो हो, लेकिन अगर हम वो ऑफ रखें तो वो सीक्वेंस से लाइन बाय लाइन रीड करे। मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम की फर्स्ट लाइन और फिर उनकी सेकंड लाइन, फिर उनकी थर्ड लाइन, इस टाइप से रीडिंग हमें मिल पाए तो काफी सारी बुक्स पढ़ने में हमको इजी होगा। जैसे म्यूजिक की नोटेशन बुक होती हैं तो वो भी हम रीड नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट। जी, तो वो इस टाइप की बुक्स जब मैं रीड करने जाती हूँ तो मुझे काफी डिफिकल्टीज होती है सर। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? हाँ सर, तो इसका हम लोग को थोड़ा और समझना अलग होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स या बुक्स हैं वो उसके एक्चुअली जो कॉलम्स किस प्रकार के हैं। तो अगर आपसे ये पॉसिबल है, अगर उस बुक्स के कुछ इमेजेस अगर आप हमसे ईमेल में शेयर अगर आप क्लिक कर सकते हैं, तो फिर हम लोग उसका इन्वेस्टिगेट करके उसका हम समझ सकते हैं कि कॉलम डिटेक्शन ऑफ होने के बावजूद वो क्यों जो कॉलम्स को डिटेक्ट कर रहा है। क्योंकि स्टैंडर्ड जो उसका बिहेवियर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कॉलम डिटेक्शन ऑफ हो तो कॉलम्स को नहीं डिटेक्ट करना चाहिए। तो अगर आपके पास इसके एग्जांपल्स कुछ इमेजेस हों जो आप उस बुक के हमको आप लोग भेज सकते हैं, तो उस इमेजेस को रख के हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट उसको करके हम इस बात को हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली इशू हो क्या रहा है। और अगर वो एक बार वो इशू समझ में आ गया तो उसका फिर हम कुछ सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ओके सर, मैं सेंड कर और दूंगी। इसमें मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा सुनीता जी। जैसा कि कार्तिक जी ने पहले भी बताया है कि हमारे फिलहाल जो हमारा ऑफलाइन रीडिंग का जो हमारा ऑप्शन है और हिंदी डॉक्यूमेंट्स या इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स जो हम ऑफलाइन पढ़ते हैं उसमें अभी फिलहाल कॉलम डिटेक्शन का ऑप्शन जो है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है और इसके ऊपर हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं जिससे कि हम ऑफलाइन में हमारा कॉलम डिटेक्शन को इम्प्रूव कर सके। और आप जो हमारे साथ डॉक्यूमेंट या इमेजेस वगैरह शेयर करेंगे हम उनको देख के और उनको समझ के हम अपना ऑफलाइन कॉलम डिटेक्शन जो है उसको और इम्प्रूव कर सकें। जी सर, थैंक यू। और सर एक क्वेश्चन मेरा और ये भी था, स्कैन टेक्स्ट वाले ऑप्शन से रिलेटेड था कि
एज अ टोटली ब्लाइंड अगर मैं स्कैन करना चाहती हूँ तो जब मैं फोन रख के स्कैन करती हूँ तो वो रीड तो करता है कि ऑल एजेस आर विजिबल और फिर फोटो क्लिक हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी टेक्स्ट क्लियर नहीं आते। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मुझे किस तरीके से करना चाहिए, या क्या हाथ हिल जाता है, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, या किस कारण से वो पिक्चर्स क्लियर नहीं आ रही हैं और टेक्स्ट छूट जा रहे हैं या क्लियर नहीं आ रहे हैं? तो मुझे वो फीचर किस तरीके से यूज करना चाहिए, या मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ इससे ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है? समझ गया। या ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली तो कौन से एलिमेंट में हो रही है, ये हमारे लिए बताना थोड़ा लाइक डिफिकल्ट रहेगा कि वो इमेज ठीक से नहीं कैप्चर हो रहा है, कि बहुत अंधेरा है, या जो इमेज जो लाइक टेक्स्ट है वो जो है वो ही अनक्लियर है। तो इसके नहीं बहुत सर, सारे एक्चुअली रीजन मैं हो सकते हैं। हाँ जी। हाँ सॉरी सर, हाँ एक्चुअली बोलिए। मैं बुक की फोटो खींच रही हूँ और हम्म लाइट भी प्रॉपर होती है उस रूम में जब मैं फोटो खींचती हूँ, मतलब पढ़ने की भी कोशिश करती हूँ हम्म फोटो खींच के। हम्म सारी चीजें क्लियर होती हैं, हम्म लेकिन फिर भी टेक्स्ट छूटते हैं, तब भी मिस होते हैं टेक्स्ट। अच्छा जी। जी हाँ, तो मैं इसमें एक चीज बता सकता हूँ। तो हम लोग जो रिकमेंड चले करते हैं कि इस फीचर को कैसे यूज किया जाए, या तो जो हम लोग ने देखा है जिससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आप कोई भी जी बुक या अगर आप डॉक्यूमेंट को आप रीड करते हैं, तो जैसे ही आप वो स्कैन टेक्स्ट का फीचर आप टेक दबाती हैं, पहले आप जो फोन है उसको आप वो बुक के डॉक्यूमेंट के एकदम सेंटर में रख दीजिए। फिर जी वहां से आप अपना जो फोन है उसको आप सीधा ऊपर की तरफ आप जो फोन को आप जो उठाते रहिएगा जब जी तक वो जब तक वो ऑल एजेस आर तक विजिबल नहीं बोलता है। तो जी उस जी पॉइंट जी तक जी आप अपना फोन को आप ऊपर उठाते रहेंगे, तो उस टाइम पे वो इसको इसको कैप्चर करेगा। जब वो डॉक्यूमेंट से ज्यादा दूर भी नहीं है, बट वो एग्जैक्टली उतना दूर है ताकि उसके सारे एजेस उसको दिख पाए। तो उस इंस्टेंस में हम लोग ने देखा है कि सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आप इस एक टेक्निक को आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि अगर आपको इससे इसका आउटपुट आपसे जो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। सर मैं इसी टेक्निक से करती हूँ। अच्छा जी। अच्छा, अगर उसके बावजूद अगर आपको इश्यूज अलग हो रहे हैं सरिता जी, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे जो सपोर्ट टीम को आप थोड़ा इसके बारे में आप लिखिएगा, ताकि हम देख सकते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम कौन से एलिमेंट में हो रही है। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख के हम आपको फिर बता सकते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम अलग हो का रही है, क्योंकि इस टेक्निक से अलग यूजुअली अच्छे एक्यूरेसी वाले आउटपुट आने तक चाहिए। बट अगर इसके बावजूद भी अगर एक्यूरेट आउटपुट्स नहीं आ रहे हैं, तो शायद टेक प्रॉब्लम जो अलग कुछ और अलग हो सकता है। तो अगर आप हमको इसके बारे में ईमेल करेंगे तो हम डेफिनेटली इसको और थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके आपको इसका सोल्यूशन हम टेक बता सकते हैं। ओके सर। ओके और सरिता। सर जैसे आपने मुझे ईमेल करने के लिए बोला, तो क्या वो मुझे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही करना होगा या हिंदी लिख सकती हूँ? हाँ नहीं, आप अपना ईमेल आप हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। तो हमारे जो सपोर्ट स्टाफ हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो अगर वो हिंदी लिख का नहीं भी बोल सकते तो वो उसको ट्रांसलेट करके आपको उसका आंसर दे सकते हैं। तो आप इसका आप हिंदी में भी लिख सकते हैं हम लिख के लिए। ओके, थैंक यू सर। ओके सरिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा समय को भी देख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो गया है। तो मेरे को ये डर है कि हम शायद सारे सवाल आज ना ले पाए। तो मैं और 2 लोग को पैनल में बुलाता हूँ। उसके बाद आई थिंक हम लोग को ये वेबिनार एंड करना पड़ेगा। बट अगर आपके अगर कुछ सवाल हैं जो इस वेबिनार में आप हमसे नहीं पूछ पाए हैं, तो मैं आप डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हम लोग को ईमेल करें।
हम उसमें आपको डेफिनेटली इस जो आपका रेस्पॉन्स लाइक हम देंगे। अभी के लिए मैं शिव नारायण जी को इनवाइट करता हूँ। शिव नारायण, you can unmute yourself and ask us your question. Hello, Yes, are you audible, sir? yes, yes. I'm so happy to attend this webinar. Mhm. I am using Envision application only. I would like to get Envision glasses and immediately for an affordable price in India. Mhm. So I appreciate your efforts and work you have done already to realize this mission. Especially from this year, you made this application free, and I have shared this news to my visually impaired colleagues in Kerala through the association, Kerala Federation of the Blind. We are a 54-year organization, and I'm also a totally visually challenged user of this application. I'm working as a faculty in higher education sector. So I have some concern. I found in certain applications, like it may not be useful to compare, but I'm telling, I found some applications such as Natural Reader and the electronic voice book reader that is also available in Google Play Store. In that, they are using high natural sounding, high quality TTS or voices in UK English and so on. And I doubt whether it can be used in Envision application also, because Envision is regularly using by a blind person. But these kinds of high quality sound is not accessible in Envision. But EV and Natural Reader, that is not a blind friendly application. That is, I think it is a common users application. Another thing, recently, when you changed the language switching, auto detection of language, that is not properly working, because I am using English and Malayalam generally, and rarely Hindi also. And this auto switching of languages in between different voices are not happening in my application. That is the problem I am facing, that you already addressed. You will solve this problem. Thank you. Just I called only. And if you approach the Government of India Disability Affairs Department, I think they will ready to be provide you a subsidy for the Envision glasses that may make available, because they are having several plans. Now for the visually challenged users, they are supplying only the white canes, braille instruments, and maximum high cost instrument, they are providing only a laptop. Instead of that, you approach the government policy makers directly and project a subsidized scheme for Indian visually challenged users. That may be better for you to make this application more accessible. I think that's all for today. I would like to mention. I'm from Kerala. So happy to be with you. Thank you. And I wish you all the very best for your future ventures. All right, Mr. Tech Shiv Narayan, we appreciate your feedback. I like made a note of all of them. So this is definitely something that I will take into account and like hope to improve. And we appreciate like your support. Thank you so much. All right. Let me bring one final person on board. I'm bringing Vaibhav Armatre. Vaibhav, if you can unmute yourself and ask us your question.
हाँ वैभव। Yeah, my question, there is two questions. Mhm. One is related to glasses. The price must be means affordable price, and one is second question is related to scanning feature. It's getting difficult while scanning, auto scanning, and switching TTS. Yes, sir. All right. Yeah. All right, Vaibhav, thank you for your question. Yeah. Welcome, sir. Yeah. With regards to the glasses, yeah, like we mentioned, we'll do our best to make it as affordable as possible. As of now, we have the hardware a limitation because of which we cannot make it affordable beyond a point. But yeah, like we do have a plan to bring a low cost version of the hardware that should make it more affordable in a couple of years. With regards to the scan text and auto switching, I'm assuming you're talking about when you have a language detection on, and if you're like reading a text in your two different languages, the TTS is not automatically switching between them. In that case, the advice would be to like make sure that you like have your like reading language set to the non-English reading language. जैसे अगर आपको हिंदी और इंग्लिश अगर आपको रीड करना है, तो अगर आप अपना रीडिंग लैंग्वेज अगर आप हिंदी रखेंगे, तो उस केस में वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रीड करेगा, और उन दोनों को उसके जो रेस्पेक्टिव TTS के जो वॉइसेस हैं उसमें रीड करेगा. तो दैट इज इम्पॉर्टेंट. अगर आप इंग्लिश को रखेंगे तो वो इंग्लिश ही रीड करेगा, वो हिंदी वाला रीड नहीं कर पाएगा. तो वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. Yes, thank you. ठीक है. ओके वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया. Yeah. All right, so that was Vaibhav. I think with that I would like to conclude this webinar. काफी your questions का answer इसमें हुआ. और भी जो and I know there are अभी और भी लोग हैं जिन लोग ने अपना hand raise किया हुआ है, but I think हम लोग अभी इस time में इसको stop करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 आवर से ऊपर हो चुका है ये वेबिनार स्टार्ट होके. बट आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे ईमेल के थ्रू आप पूछ सकते हैं. हमारी टीम आपके सवालों का डेफिनेटली आंसर अलग देगी. उस आपकी ईमेल्स को रिप्लाई करने में थोड़ा डिले अलग हो सकता है, क्योंकि जैसे सबसे ऐप फ्री हुआ है हम लोग के पास बहुत सारे नए अलग यूजर्स आए हैं और उनके साथ बहुत सारे सवाल भी हमको ईमेल में आते रहते हैं. और हमारी जो टीम है वो अभी भी काफ़ी एक छोटी टीम ही है, तो थोड़ा जो पेशेंस हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे. बट थोड़ा आपको देर से आपके सवालों के आंसर मिलेंगे, बट डेफिनेटली आपको आपके सारे सवालों के आंसर अलग मिलेंगे. तो विद दैट मैं कार्तिक आपसे अलविदा लेने का इजाज़त चाहूँगा. मेरे साथ क्षितिज और कार्तिक कनन भी हैं, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़ने के लिए. और हमारे साथ जितने भी अटेंडीज इस वेबिनार में जुड़े उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया. और अगर ऐसे भी कोई लोग हैं जो ये वेबिनार नहीं अटेंड कर पाए, उन लोग के तो अगर हमारा जो मैसेज है अगर आप उन तक आप लोग पहुँचा सकते हैं तो वो भी काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होगा. इसका जो इस वेबिनार का जो रिकॉर्डिंग है वो हम उसको यूट्यूब में भी अपलोड करेंगे और उसका जो लिंक है वो हम आप सबसे डेफिनेटली शेयर करेंगे. तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन लोग ये जो वेबिनार अटेंड करने में असफल रहे, तो आप उसका लिंक आप उनसे शेयर कर सकते हैं. तो विद दैट आई होप आप सब लोग का जो संडे काफ़ी अच्छा जाएगा. और जो कि कल इंडिपेंडेंस डे है, मैं आप लोग को एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का विशेस देता हूँ. एंड होपफुली इन द फ्यूचर हम लोग ने आज इस वेबिनार में जो प्रॉमिस किया है वो हम लोग उसको एक्शन के रूप में हम आपको दिखा सकें, ताकि आपका जो विश्वास हम वापस जीत सकें. बट हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए हम इस वेबिनार को एंड करेंगे.
तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग का जो इस वेबिनार में हमारे साथ आके आपने जो पार्टिसिपेट किया। थैंक यू। Thank you, everybody.